Good morning, students. Myself, Anurag Singh. Today, I am here in front of you to discuss the application of derivative. In the last video, I was explained from question number 1 to 6 of increasing and decreasing functions. And today, I am going to explain from question number 7 to onwards and so on. Right now? Then, what is the question number 7? So that, ध्यान दो बेटा, so that y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 1 plus x. Y is equal to, question number 7, y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. 2 plus x आगे लिखा है क्या बेटा? फॉर x इज ग्रेटर देन -1, फॉर x इज ग्रेटर देन -1 is an increasing function of x throughout its domain. Is an increasing function of x throughout its domain. So करना है, so that the given function is an increasing function. Right now? तो सबसे पहले अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है तो पहले तो कंडीशन जानो आपकी, व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ना. अब उसकी कंडीशन तो आप एक ही है बेटा, dy by dx इज ग्रेटर देन 0. dy by dx इज ग्रेटर देन 0. तो क्लियरली हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट log u का फार्मूला लग जाएगा. log u के फार्मूले से बनेगा 1 अपॉन u, दैट इज 1 प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस सी. हियर बेटा डिवीजन है. डिवीजन मीन्स डिवीजन रूल लगेगा. डिवीजन रूल क्या है बेटा? v, u अपॉन v वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज v एंड दैट इज u. देन 2 प्लस x into d by dx of 2x minus 2x into d by dx of 2 plus x and whole upon 2 plus x the whole square. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है ना? यहाँ तक. The next part is what? 1 upon 1 plus x into 1, because 1's derivative is 0 and x derivative is 1, minus next step 2 plus x into derivative of 2x is what? 2 minus again 2x into derivative of 2 plus x is what? 1 divided by 2 plus x the whole square. Now this can be written as 1 upon 1 plus x minus 2 into 2 4 plus 2 into x 2x minus 2x divided by 2 plus x the whole square. Here 2x is cancelled. Overall क्या बना बेटा? dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x the whole square. We can take LCM of that part. अभी इसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी dy by dx is equal to this into this, that means 2 plus x the whole square minus 4 into 1 plus x divided by 1 plus x into 2 plus x the whole square. Is that clear? Therefore dy by dx is equal to what? But at 2 plus x the whole square, right now? Then use the formula of 2a plus b whole square, that is 4 plus x square plus 4x. 4 plus x square plus 4x minus 4 minus 4x minus 4 minus 4x divided by 1 plus x into 2 plus x the whole square. 4x cancel, minus 4 plus 4 cancel. राइट ना. ओवरऑल बना क्या बेटा अपने पास? dy by dx
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। डन ना? एनी डाउट? एकदम केयरफुली ध्यान दो बेटा। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू -1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो बेटा यहां डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया, देन 2 प्लस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व किया बेटा, 2x 2 प्लस एक्स इंटू 2 डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 माइनस 2x into derivative of 2 plus x is 1 divided by 2 plus x the whole square. Is that clear? Next step, 1 upon 1 plus x minus here 2 into 2 that is 4, again 2 into x 2x, next is what? Minus 2x divided by 2 plus x the whole square. 2x and 2x cancelled out, therefore 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x the whole square. Clear? इसके बाद हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे सॉरी एलसीएम लिया, तो एलसीएम इसका क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 2 plus x the whole square that can be written as minus 4 into 1 plus x divided by that part. Clear till here? Any doubt? Next, therefore dy by dx is equal to 2 plus x the whole square में को एक्सपेंड किया मैंने, किसको एक्सपेंड किया बेटा? 2 plus x the whole square that can be written as 4 plus x square plus 4x minus 4 into 4x divided by 1 plus x into 2 plus x the whole square. Is that clear? Any problem till here? अब यहां पे बात आती है बेटा, 4x से 4x कैंसिल हो गया, -4 से +4 कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बचा? x स्क्वायर अपॉन 1 plus x into 2 plus x the whole square. राइट ना? अब फंक्शन क्या है बेटा? उसने क्या बोला है कि so that the given function is an increasing function, so that the given function is an increasing function of x throughout its domain. आपको शो करना है कि दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। यहां पे है कितनी चीजें, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये पूरे को प्रूफ करना है हमें कि दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, ये प्रूफ करना है। ध्यान रखो, ये है नहीं, ये क्या करना है? प्रूफ करना है। जैसे ही आप इसको प्रूफ करोगे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। बट इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास कंडीशंस क्या क्या है? देखो, dy by dx is equal to 0. That means x square upon 1 plus x into 2 plus x the whole square is equal to 0. This implies x square is equal to 0, therefore x is equal to 0. अभी x की वैल्यू 0 आ गई और अपना इंटरवल क्या दिया बेटा? ग्रेटर देन -1. ग्रेटर देन -1 मींस greater than -1 means x is greater than -1 means since assume कर लेंगे बेटा, since x is greater than -1 therefore it lies between -1 to infinity and our point is what? x is equal to 0. अब अपना रिजल्ट x इज इक्वल टू 0 आ रहा है और इनका रिजल्ट -1 टू इन्फिनिटी के बीच में लेना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे। देयरफॉर -1 टू इन्फिनिटी कैन बी ब्रेक्ड एज -1 टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। अभी -1 टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी के बीच में हमने उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो हर एक पार्ट में चेक करेंगे, अगर ये यहां पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, यहां पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, देन वी कैन से दैट कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो हम लोग एक को चेक करते हैं, फॉर x फॉर -1 टू 0 देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू व्हाट? बेटा -1 टू 0 में अगर मैं चेक करूंगा तो यहीं पे चेक करके देखो, -1 का से 0 दैट मींस लेस देन 1,
लेस देन 0 का मतलब ये हुआ निगेटिव, और अगर नंबर निगेटिव है तो यहां पे चेक करो, यहां पे चेक करो बेटा, यहां पे चेक करेंगे निगेटिव नंबर आएगा, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, यहां पे चेक करो स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां आएगी, यहां पे x के प्लेस पे -1 to 0 कोई भी नंबर लोगे आप, आंसर आएगा आपका पॉजिटिव ही, बिकॉज 1 + x लिखा है। अगर x की जगह पे छोटा सा भी छोटा नंबर ले लेते हो आप 0.9999, तो यहां पे आ जाएगा कितना 0.001, दैट मींस कुल मिला के 1 + x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मींस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ये वाला फंक्शन तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर -1 to 0 dy by dx is equal greater than 0. Therefore the given function is an increasing function, राइट ना। अब हम सेकेंड पार्ट हमारा क्या बेटा, ग्रेटर देन फॉर 0 to infinity, इसके लिए चेक कर लेते हैं बेटा। 0 to infinity, that means x is greater than 0. x is greater than 0 means it is positive number. अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहां पे भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहां पे देख लो 1 + पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, मींस ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो फॉर 0 to infinity dy by dx is greater than 0. Therefore the given function is an increasing function, राइट ना। अब ये भी फंक्शन आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब मैं दोनों पे फोकस करता हूं बेटा, इसको मैंने मान लिया बेटा 1 और इसको मान लिया मैंने क्या 2। 1 में भी रिजल्ट इंक्रीजिंग आया है, 2 में भी रिजल्ट इंक्रीजिंग आया है, देयरफॉर वी कैन से दैट कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। देयरफॉर रिजल्ट लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 the given function is an increasing function, in -1 to infinity. Is that clear? Any doubt? Now question number 8. What is given in question number 8? Find the value of x for which y is equal to x into x minus 2 the whole square is an increasing function. Clear na? In question number 8, y is equal to x into x minus 2 the whole square. Therefore y is equal to x into x square minus 2x the whole square. Prove that this is a increasing function. Find the value of x. Question है बेटा, find x if y is increasing function. Clear ना। सबसे पहला पार्ट आपको प्रूफ क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा बेटा, dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। इसका डेरिवेटिव करने के लिए u raised to n अप्लाई करोगे, 2 into x square minus 2x to the power 2 minus 1 into d by dx of x square minus 2x. Therefore dy by dx is equal to 2 x square minus 2x into derivative of this part 2x minus 2. What is common from here and what is common from here? यहां से 2 कॉमन है and यहां से from here x. Therefore dy by dx is equal to 4x. देखो 2 इसमें से आया तो 2 into 2 4, यहां से x आया तो x, और यहां क्या बचेगा बेटा x minus 2,
और यहां पे क्या बचेगा, x माइनस वन, यस और नो, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। नाउ अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसकी, लेट dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो, ज्यूम कर लिया, क्या ज्यूम कर लिया, जीरो। दैट मीन्स 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू वन। मीन्स द गिवन फंक्शन is distributed from 0 1 2, यही नंबर है ना बेटा, तो माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू वन, वन टू टू एंड टू टू इन्फिनिटी। देखो मिनिमम वहां से कहां तक, जीरो तक, देन जीरो टू वन तक, देन वन टू टू एंड टू टू आ गया। क्लियर। अब मैं एक एक पार्ट पे चेक करूंगा। फॉर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, पहले पार्ट के लिए चेक कर रहा हूं, फॉर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू, बेटा अगर मैं माइनस इन्फिनिटी टू जीरो लूंगा तो कोई भी नंबर लेता हूं, यहां पे चेक करो क्या आएगा, ये आएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अगर मैं जाता हूं तो जीरो तो छोड़ देना है आपको, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जा रहा है, तो यू आर एक्सेप्टिंग जीरो, तो जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर लोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, निगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, निगेटिव, बिकॉज निगेटिव नंबर अगर मैं यहां पे लूंगा तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव नंबर यहां पे लूंगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, क्या रहेगा बेटा, क्लियर। यहां पे x के प्लेस पे अगर मैं माइनस नंबर लेता हूं तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। बट पॉजिटिव इंटू यहां पे भी तो निगेटिव लेंगे, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज ओवरऑल निगेटिव, मींस ये हो जाएगा लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज decreasing from माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। सेकेंड पार्ट, ये पहला पार्ट लिया मैंने, अब सेकेंड पार्ट, जीरो टू वन, फॉर जीरो टू वन, लुक हियर अगेन, हियर जीरो टू वन मीन्स पॉजिटिव नंबर लेते हो आप, क्या लेते हो बेटा, यू आर टेकिंग पॉजिटिव नंबर, जीरो टू वन दैट इज पॉजिटिव, जीरो टू वन यहां लोगे तो निगेटिव आएगा, क्योंकि जीरो टू वन, वन से छोटा ही लोगे ना, तो ये नंबर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ये नंबर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और यहां पे प्लस ऑलरेडी पहले से था, प्लस। क्लियर ना। तो फ्रॉम जीरो टू वन dy बाय dx इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर f ऑफ x इज एन increasing function, is an increasing function, right ना। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड इंटरवल इज व्हाट, और 1 to 2, 1 to 2 में देखो बेटा dy बाय dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हो, देखो x की जगह पे 1 to 2, दैट मींस अ नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2, नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2, अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव होगा, 1 and 2 अगर कोई भी नंबर पुट करूंगा तो ये देखो, 1 x के प्लेस पे 1 या 2 के बीच में कोई भी नंबर पुट करूंगा तो ये बेटा क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहां पे पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, क्या आएगा, 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर पुट करूंगा बेटा तो ये रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, dy बाय dx is less than 0 because the result is what, negative, dy by dx is 0, therefore the function is decreasing, in 1, 2, इसको नाम दे दिया बेटा मैंने क्या, 3। अब देखो टोटल अपने पास 3 रिजल्ट्स आए हैं, कितने रिजल्ट्स आए हैं, 3 रिजल्ट्स आए हैं, पहले में डिक्रीजिंग आया,
दूसरा 0 to 1 में इंक्रीजिंग आया और तीसरा 1 to 2 में भी डिक्रीजिंग आ गया। तो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3 we can say that the function is increasing, the function is increasing in interval 0 to 1. That's all. तो आपको इंटरवल पूछा था बेटा, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आपका 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करते हो, आपका फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन in sum number 9. What is given? Y is equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi by 2. प्रूफ करना है बेटा इंक्रीजिंग। क्या प्रूफ करना है? इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट ना? देन आसान सा पार्ट है, कभी भी याद रखो, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं अगेन। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट रूल, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, राइट ना? हियर इन द क्वेश्चन नंबर 9 your variable is what? Y and theta. Function is y in form of theta, therefore differentiate the given function with respect to theta. Differentiate with respect to theta. Therefore dy by d theta is equal to what? Here 4 sin theta upon 2 plus cos theta. That means we can apply division rule. कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं बेटा? डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा, वेयर डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 एंड कॉस थीटा's डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा, 2 plus cos theta the whole square minus derivative of theta is 1. Is that clear? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लिट करने जा रहे हैं। एक्सप्लिट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 4 cos theta into 2 that is 8 cos theta, फिर 4 cos theta into this plus 4 cos square theta minus plus, that is what? 4 sin square theta divided by 2 plus cos theta the whole square minus 1. कुछ समझ में आया बेटा? यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग सकती है। अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूं तो if we take common 4 then trigonometric identity is applicable, then that is what? 8 cos theta plus 4, कॉमन लेने के बाद ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिखा? 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1. देयरफॉर वी कैन राइट dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेने जा रहे हैं बेटा, 8 cos थीटा प्लस 4, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 plus cos square theta plus 4 cos theta divided by 2 plus cos theta the whole square. Yes or no? बोलो। अब ये बनेगा बेटा, ब्रैकेट ओपन करो, 8 cos theta plus 4 minus 4 minus cos square theta minus 4 cos theta divided by 2 plus cos theta the whole square. Overall is what? 4 cancel. 8 cos theta minus 4 cos theta, that can be written as 4 cos theta minus cos square theta divided by 2 plus cos theta
द होल स्क्वायर, यस और नो? बेटा बी नीड व्हाट? 0 to पाई बाई 2। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लेट डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? 0। आपको इंटरवल निकालना है ना। देन 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपॉन 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो रिजल्ट क्या बन जाएगा अपना? 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं कॉमन ले लूं बेटा, cos थीटा कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा? 4 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। यस और नो? दैट मीन्स cos थीटा is equal to 0 and cos theta is equal to 4, which is not possible because value of cos theta greater than 0 means, sorry, value of cos theta is equal to 4 does not lie in its interval. Therefore cos theta is equal to 0. Cos theta is equal to 0. What is the value of cos theta is equal to 0? Pi by 2। यही होता है ना, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा आ चुका है बेटा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा वो देख लो आगे। रिजल्ट हमारा 0 टू थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है और अपना चेक कर रहे हैं इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में, राइट ना? मीन्स ये हुआ कि एक इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 बनेगा, दूसरा इंटरवल पाई बाई 2 टू 0। सिंस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर 0 टू पाई बाई 2 कैन बी breaked as 0 to pi by 2 and pi by 2 to pi by 2 to pi। उसको पाई के आगे जूम कर लिया, राइट ना? अब यहां हम लोग दोनों पे चेक करेंगे बेटा। फॉर 0 टू पाई बाई 2 देयरफॉर dy by d थीटा इज इक्वल टू, लुक हियर, यही है dy by d थीटा की वैल्यू कितना है ये बेटा? 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर, राइट ना? ये dy by d थीटा की वैल्यू थी या कुछ और है? सेम यही है dy by d थीटा, राइट ना? अब यहां पे 0 टू पाई बाई 2 कोई भी नंबर लेके आप देख लो, रफ में चेक करो। 4 इंटू 0 टू पाई बाई 2 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इज व्हाट? पॉजिटिव, तो 4 इंटू पॉजिटिव, राइट ना? 4 इंटू पॉजिटिव माइनस हियर आल्सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2 प्लस पॉजिटिव द होल स्क्वायर। ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज अगर इसकी वैल्यू कितनी भी होगी, ये वाले पार्ट की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, 1 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 4 माइनस 1 3 इज पॉजिटिव नंबर, और हियर 2 प्लस 1 इज पॉजिटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव। ओवरऑल क्या मिलेगा बेटा? dy by dx इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द गिवन फंक्शन is increasing in 0 to pi by 2, राइट ना? अब सेकंड पे चेक कर लेते हैं बेटा। फॉर पाई बाई 2 टू पाई dy by dx, यहां पे चेक करो बेटा। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट 0 टू पाई के लिए अगर हम बात करते हैं बेटा तो इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज व्हाट? second quadrant, and in second quadrant 4 into second quadrant cos is negative, माइनस नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। 4 माइनस 1 दैट इज -4 प्लस जो भी आएगा रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा। अब अगर निगेटिव आ गया न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर तो अपने आप निगेटिव हो जाएगा।
अब अगर डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया, न्यूमरेटर भी निगेटिव होगा, दैट मीन्स ये हुआ कि दिस इज व्हाट लेस देन जीरो, दिस इज व्हाट लेस देन जीरो। देयरफॉर द गिवन फंक्शन, देयरफॉर स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, given function is decreasing in pi by 2 to pi। अब इसका नाम दिया था बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इस फाइनल स्टेटमेंट from 1 and 2 we can say that y is equal to f of theta is an increasing function, is an increasing function in 0 to pi by 2। Is that clear? स्टेटमेंट समझ में आया बेटा? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे, वहां से एक्स थीटा की वैल्यू मिलेगी। वो थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने फंक्शंस के जो डोमेन दिया हुआ है, जिस रेंज में आपको चेक करना है, उस रेंज को ब्रेक करेंगे। जितने भी पार्ट्स हैं, सपोज कर लो यहाँ पे हमने ब्रेक किया था तो दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में रिजल्ट आया इंक्रीजिंग, दूसरे पार्ट में रिजल्ट आया डिक्रीजिंग। हमसे उसने क्या पूछा था, इन द गिवन क्वेश्चन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास कौन सा डोमेन मिल रहा था, फर्स्ट डोमेन, दैट इज 0 टू पाई बाई 2। उसके लिए हमने वो वैल्यूज पुट अप कर दिया एंड वी विल गेट आवर आंसर, राइट ना। हर एक स्टेप फिक्स है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाने की कम जरूरत है, वर्किंग रूल्स फॉलो करने की ज्यादा जरूरत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on 0 to infinity। Prove that logarithmic function is strictly increasing in 0 to infinity, in 0 to infinity। Question number 10, let y is equal to log x, ले लिया मैंने, एज्यूम कर लिया y is equal to log x। इंटरवल कितना दिया बेटा, 0 to infinity। सबसे पहला रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, therefore dy by dx is equal to 1 upon x, right ना। अब फॉर लेट एज्यूम कर लेंगे 0 टू इन्फिनिटी में बात करते हैं, डायरेक्ट इसी पे बात कर लेते हैं बेटा, dy by dx is greater equal to 1 by x, राइट ना। अगर x की जगह पे कोई भी नंबर डालोगे 0 टू इन्फिनिटी, दैट मींस 0 टू इन्फिनिटी मींस व्हाट, पॉजिटिव नंबर। 0 टू इन्फिनिटी किस रेंज को रिप्लाई करता है, पॉजिटिव नंबर को रिप्लाई करता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे कोई भी पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो dy by dx इज ग्रेटर देन 0, ये 0 आएगा ना, dy 1 by x इज ग्रेटर देन 0, therefore dy by dx इज ग्रेटर देन 0, therefore the given function is strictly increasing। The given function is strictly increasing function, is that